आइए हम याद करें लाहिड़ी महाशय के पहले महातार बाबा की पूर्ण उपस्थिति का प्रमाण के साथ जिक्र नहीं है। लाहिड़ी महाशय ज्ञानतारिक तीर्थगिरी परमहंस योगानंद इन सब के माध्यम से महातार बाबा की उपस्थिति का सम्यक ज्ञान हुआ। महातार बाबा सभी अवतार के अवतार, सभी गुरु के गुरु, जितने अवतार हो चुके हैं या जो अवतार इस समय हैं या जो आएंगे, सबके महाअवतार, उनके ऊपर ये महाअवतार, हम सब उनके ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। उनका ज्ञान का वर्णन क्या है कि सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव कर रहे हैं, साक्षात परब्रह्म निराकार भगवान वो स्वयं इस साकार रूप में प्रकट हो रहे हैं। We are very fortunate that we now believe existence of Mahavatar Babaji, instrumentality of Lahiड़ी Mahasaya. Jnanatarik Tisagri and Paramhansa Yogananda has proved existence of Mahavatar Babaji. He is Guru of all Gurus. He is Avatar of all avatars. What is his teaching? We are ready to follow it. Head to toes what we feel, accept it. Presence of complete unit of power, knowledge, peace, bliss, immortality. Feel head to toes more and more. अब दोनों पैरों को सामने की तरफ धीरे धीरे फैलाएं। धीरे धीरे क्यों फैलाएंगे? जिससे फैलाते हुए जितने प्रकार के परिवर्तन प्रकट हों उनका दर्शन कर सके। Not extend both legs slowly. Why slowly? So that we can have darshan of various changes which are born, which are hidden within both legs. When try to extend them slowly, then we have darshan of the various changes. There are various vibrations of knowledge of all kinds. अब दोनों पैर को सामने की तरफ फैला करके कड़ा ढीला करें। After extending both legs in front, hands relax alternately. दोनों हाथ को हम बगल में फैलाएं। Spread arms in lateral position. मुट्ठी बंद करें, खोलें। Clench fist, open palm alternately. पैर की अंगुली से लेकर सिर तक सब में एकाग्रता बढ़ाएं। From tip of the nails of the toes to top of the head, feel head to toes. Presence of head to toes, changes within head to toes we feel is presence of all kind of knowledge, power, peace, bliss, immortality. दोनों हाथ को बगल में फैला करके धीरे धीरे मुट्ठी बंद करें, फिर धीरे धीरे मुट्ठी खोले। इस तरह से अभ्यास करते जाएं। जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसमें एकाग्रता बढ़ाएं, अनुभव करें। सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की उंगली तक दोनों पैर सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। फिर हाथों को हम मोड़े और फैलाएं। फोल्ड आर्म्स, open arms alternately. Clench fist, open palm alternately. हाथों को धीरे धीरे हम मोड़े और फैलाएं। मुट्ठी को धीरे धीरे हम बंद करें और खोलें। धीरे धीरे इसलिए करना है जिससे अनन्यत परिवर्तन, जो पवित्र स्पंदन है, उनका दर्शन हो सके। Why we have to
fold arms slowly and open slowly, clench your fist slowly and open palm slowly, so that we must have darshana of all the pure vibration which is present within head to toes. Now relax arms, हाथ को ढीला करें, relax slowly, धीरे धीरे ढीला करें। इस तरह से महाता बाबा की शिक्षा के अनुरूप हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करने में सफल हैं। In this way, according to the teaching of Mahavatar Baba, we have successful practice. We are having the great practice, successful practice of the teaching of Mahavatar Baba ji. फिर हम दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें. Again place both palm on the posterior surface of head. Feel head and spine. सिर और रीढ़ में एकाग्र हो जाए. सिर, चेहरा, गला, रीढ़ अनुभव करे. Head, face, neck, spine feel. रीढ़ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं. Try to stretch spine upward slowly. सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करते हुए try to feel presence of head to toes more and more. According to the teaching message of Mahavatar Babaji, whatever we feel, accept all presence of complete unit of knowledge, power, peace, bliss, immortality. महावतार बाबा के शिक्षा के अनुरूप दोनों हथेली को सिर के पीछे रखकर सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रही हैं, यह अनुभूति संपूर्ण ज्ञान तत्व, सर्वशक्तिमान तत्व, परम शांति तत्व, परम आनंद तत्व और अमरता की अनुभूति है. अब धीरे धीरे हाथ ढीला करें. Now relax arms slowly. धीरे धीरे पैरों को सामान्य रूप में जिस तरह से रखना चाहे रखें. Try to place your both legs in the way you like. You may have cross leg or lotus posture, or you can sit in chair in whatever position you like. आप चाहे क्रॉस लेग में बैठ जाएं या पद्मासन में या कुर्सी पर, किसी तरह से बैठे. महावतार बाबा की शिक्षा कितनी आसान है. इसे बार बार उसी तरह से अभ्यास करना होगा जैसे 1 से लेकर के 100 तक की गिनती जब लोअर केजी में थे या पहली कक्षा में थे, गिनती को बार बार दोहरा करके कैसे याद किए, अल्फाबेट को बार बार लिख करके दोहरा करके याद किए, वैसे इसको बार बार अभ्यास करके इस अनुभूति में अपने को विलीन कर दें. Try to practice this again and again and merge your consciousness in the various perceptions we feel during practice. By practicing again and again, one day we will realize we can practice it all the time. As we have learned countings and tables when we started our education, we have learned how to write alphabet, vowel, consonant. In the same way, by repeated practice, one day we will realize practice has become automatic process. फिर दोनों हथेली से हम सिर को पकड़ करके दबा करके अनुभव करें. With the help of both palms, try to touch a head. Press it from both sides. Try to feel a head, posterior surface of head and forehead. Try to feel it. Eyes, nose, upper lips, lower lips, chin, lower chin, upper chin, ear, around ear, गले का पिछला भाग, posterior surface of neck,
साइड ऑफ द नेक, गले का बगल का भाग, फ्रंट ऑफ द नेक, गले का सामने का भाग स्पर्श करे, अनुभव करे। इस अनुभूति को स्वीकार करें कि सर्वज्ञ तत्व, सर्वशक्तिमान तत्व, परम शांति तत्व, आनंद तत्व, अमर तत्व की उपस्थिति है। एक्सपीरियंसिंग प्रेजेंस ऑफ हेड टू टोज, हेड, फेस, नेक, whatever we feel, accept it. Presence of omniscient consciousness, omnipotent consciousness, eternal peace, bliss, immortality. फिर हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स। दोनों हाथ के सहारे अब हम पीठ के अधिकतम स्थान को हिलाने डुलाने का अभ्यास करें, पकड़ करके दबा करके अनुभव करने का अभ्यास करें। Now with the help of both arms, palm and fingers, try to move different parts of the back by moving back up and down, taking help of the both palms, placing them from upper side, from the lower side. Try to create movement in the structure of the back, and during this movement, whatever we feel, accept all presence of omniscient consciousness, omnipotent consciousness, eternal peace and bliss, immortality. दोनों हाथ के सहारे हम पीठ के एक एक भाग को छू करके दबा करके अनुभव करें, पीठ को ऊपर नीचे करके हिला डुला करके अनुभव करें। इस सारी अनुभूति को हम बार बार दोहराएं। यही सर्वज्ञ तत्व, सर्वशक्तिमान तत्व, यही परम शांति तत्व, परम आनंद तत्व, यही अमर तत्व की अनुभूति है। फिर हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स। अब दोनों हाथ के मदद से सीना और पेट, दाहिने हाथ से बायां हाथ, बाएं हाथ से दाहिना हाथ, with the help of both arms, palm and fingers, try to select thoracic area, abdominal area, and right arm with the left and left arm with the right. Try to feel it. Whatever we experience, accept it. Presence of omniscient, omnipotent consciousness, eternal peace and bliss, immortality. दोनों हाथ के सहारे अब हम thoracic area, सीने का भाग, पेट का भाग, दाहिना हाथ बायां हाथ पकड़ करके दबा करके अनुभव करें। जो अनुभूति हो रही है स्वीकार करें कि सर्वज्ञ तत्व, सर्वशक्तिमान तत्व, परम शांति तत्व, परम आनंद, अमर तत्व की उपस्थिति है। फिर हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स। एक बार फिर से कमर से लेकर के पैर की अंगुली तक एक एक भाग को पकड़ करके दबा करके अनुभव करें। Again once more, starting from the lower back and proceeding towards the tip of the nails of the toes. Try to touch each and every part, press it, touch it, feel it. Whatever we feel, accept all presence of omniscient, omnipotent consciousness, eternal peace and bliss, immortality. दोनों हाथ के सहारे एक बार फिर से हम कमर से लेकर के पैर की उंगली तक एक एक भाग को स्पर्श करें, दबाएं, अनुभव करें। जो अनुभूति हो रही है ये सर्वशक्तिमान तत्व, परम शांति तत्व, परम आनंद, अमर तत्व की उपस्थिति है। अब सब ढीला कर दे, रिलैक्स ऑल पार्ट्स। सिट इन रेगुलर पोजीशन, जिस तरह से बैठना चाहें बैठ जाएं। आंखें खोलें, ओपन आईज। ये छोटा सा अभ्यास करता क्या है, अपने अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। एक फेफड़े को फूलने पिचकने से अपने अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो ये कार्य तो आप हर जगह कर रहे हैं, चमड़े में, मांसपेशियों में, हड्डियों में, कार्टिलेज में, आर्टरीज में, वेन्स में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो बड़ी ऑक्सीजन की मात्रा अपने अंदर में एकाग्र होते हैं तो जाती है सुषुम्ना द्वार में, सुषुम्ना द्वार में जाती है, सुषुम्ना मार्ग में जाती है।
फिर वज्रा नाड़ी चित्रा नाड़ी में जाती है, वहां जाकर के रूपांतरित होती है लाइफ फोर्स में। फिर लाइफ फोर्स क्या करता है, डिके रोक देता है, पूरे शरीर का डिके रोक देता है, और जो चीज टूट फूट गई उसका नवनिर्माण करता है। इसी के साथ साथ एक चीज और होती है, जब श्वास लेने की गिनती घटती है, श्वास अब बाहर तेजी से हांफने की तरह नहीं निकलती है। श्वास के इस रूपांतरण से जो शरीर में जैसे उम्र बढ़ती है, पता चला चमड़ा मोटा होता गया, हड्डियां बढ़ती गई, शरीर बदलती गई। जो कहते वृद्ध होना, जो बढ़ती है शरीर, बढ़कर इसका रूप रंग बदलता है, वो भी रुक जाता है, स्टे हो जाता है, न तो बढ़ेगा न घटेगा। इस अभ्यास से इतना होता है। टाइट अंडरस्टैंड थ्रू दिस प्रैक्टिस वी स्टार्ट स्टोरिंग ऑक्सीजन, that when lungs expand contracts, we increase quantity of oxygen within. Now in this practice with the principle of Mahatma Babaji's, we are expanding, contracting each and every part. There is a lot of accumulation of oxygen within. As you practice it more and more, the direction of oxygen is towards Sushumna. Within Sushumna, there is a Vajra Nadi, Chitra Nadi. These oxygen elements, they enter into these nadis. They are transformed into life force. Transformation of the life force within, it prevents decay. And decay is stopped. As well as it also prevents unnecessary growth, or skin keep on growing. It represents aging process. There is a bone keep on growing, then it starts colliding each other. That is the message of decay. Then unnecessarily mutation of growth is stopped and decay is stopped. Then no decay, no growth. Then you have suspended animation state. Now you can stay on this earth as young. Little bit, whatever I practice, it starts appearing within me. That I entered 74, but I feel myself more fresh, energetic than when I was in medical student or when I was in doing graduation. I am not saying that I have become master of this. No, I am trying to become master. There is no limit of practice. Practice and practice, endless limit. इसके अभ्यास कोई लिमिट नहीं है। जो हम कह रहे हैं कि वृद्धत्व और ह्रास दोनों रोक देता है। जो कुछ हमने थोड़ा बहुत किया उसका असर तो दिखता है। आंख का चश्मा उतर गया, कैविटीज फिलअप हो गई। जो हम जब बीएससी कर रहे थे या मेडिकल में थे उसमें सब ज़्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश फील करते हैं। कुछ तो हुआ है भाई। तभी मैं नहीं कहते कि हम सब कुछ जान गए, हम जानने के प्रयास में लगे। कि विज्ञान अनंत है, ये चीज समझ में आई। कितना आसान अभ्यास जो आपने किया, वो प्रैक्टिस यूट्यूब पर जा रही है। आप आराम से करके सोया करिए, उठते ही कर लिया करिए। बार बार करते करते वैसे ही अभ्यास स्वतः होने लगेगा। जैसे श्वास अपने आप लेते हैं हम, बिना प्रयास के श्वास चलती है। सो गए तब, स्वप्न देख रहे हैं तब, जग रहे हैं तब। दिस all the message will be in the YouTube. Keep on practicing it on YouTube. Every day more and more. And you will realize this practice has become automatic process. That is what we need. I'm very fortunate. We have great personality in this. You are not simple, remember it. You are a special gifted person. Mahatma directed all of you just to be here. These masters, they have different ideas who are going to join this. बहुत ही भाग्यशाली हैं, आप सब महान आत्मा साथ में हैं। महातार बाबा की कृपा
योगाता लहड़ीमा से, 11 तारीख तीसरे परमहंस योगानंद, जो ये सब ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। इसमें आप लोग कितने महान हैं, इसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता।